I think some net issue happened. Sorry, I think net issue का कुछ प्रॉब्लम हो गया था. Okay. So yeah, I'm also doing a live after a very long time, so I'm very excited. बहुत समय से मैंने एक live नहीं किया था, and I'm very happy to be here talking to you. And Paras How are is you? also missing. तो उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल पोयम भी लिखा था. कितना अच्छा लगा आपको वो पढ़ Poem. के. Please सुनाइए. तो उन्होंने इंस्टा पे डाला था तो हैशटैग दैट ना. हाँ, I know. He's very romantic, you know. यस. तो हमारी he's really busy right now. वो 2 शो कर रहे हैं, शक्ति एंड जी. नागिन. तो उनको बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि वो भी आ जाए दुबई 2-1 दिन के लिए, बट his schedule is pretty chock-a-block. So he has been missing me, and I've been very busy with the children. I'll be very honest with you. I think he's missing me more than what I'm missing him. But हाँ, अगर वो भी यहाँ होते तो it would have been good break for him also. ओके, तो शिफाली आपका कोई प्लान है वापस आने का अभी? नो, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप जल्द आ सकते हैं, आपको एक नया शो मिलने वाला है. दे आर सेइंग दैट यू आर बैक फॉर द भाभी जी रोल आल्सो. No, भाभी जी रोल आई एम नॉट डूइंग. आई डोंट नो ये रूमर्स कहाँ से फैली है. मैंने हर जगह से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है. But I don't want to disappoint the audience. But it's just that I'm not doing that role. और इसका जीता जागता सबूत है कि मैं यहाँ दुबई में बैठी हूँ. So I'm यस. not sure for anything, and I've come here for a break. But yeah, I will be back soon. You know, work has started again in Bombay, or I'm just trying to be here jitna lamba as I can. But very soon I'll be back home, back to work. So शिफाली, what kind of role you are waiting for? मतलब which genre you want to do, which character you are likely, मतलब you are waiting to do that character. There is so much work to do, but you know, I love the comedy genre a lot. मैंने 2 web series भी की थी which were out and out, you know, comedy, and I really enjoy that zone because I am a funny girl. I'm Yeah. very witty. तो जब हम कॉमेडी करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है. प्लस इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज Yes. किसी को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल होता है. बहुत So टफ I think होता the है. comedy genre is very difficult to pull through. You know, your comic timing and everything to do with comedy. But yeah, but it's just that you know I've not limited myself to comedy, but anything interesting. Because जो रोल आप करते हैं वो रोल आप बहुत समय के लिए you know you play that particular character. So एक ऐसा character होना चाहिए जिससे आप relate कर पाए, and वो character play करने में आपको मजा आए. Then you can give it your best shot, and you can you know go on shooting every day for, and shows go on for months and years, and sometimes you become that character. So it's very जी. important to you know absolutely connect with that character. So a lot of good work is coming, but I'm still waiting for that one special role, which I think will be just perfect. पराग इज ऑल्सो देयर. उन्होंने लिखा है मिस टू यू मेरी गुंडी. Is he on the live? यस यस यस. Hi Parag, I miss you too. He's so sweet. He's not shy. मतलब वो he doesn't worry about public display of affection. He's very खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम लोग types. यस, ऐसा होना भी चाहिए और हमने ये देखा भी है बिग बॉस में. Yeah, बिल्कुल. यस. That keeps the spark alive in a relationship, you know. Just because we are married for 5 years, we should not stop behaving like boyfriend girlfriend. We are like boyfriend girlfriend. हमारा रिश्ता ऐसा है कि जैसे कि हम डेट कर रहे हैं. मतलब ऐसा वो न्यूनेस होनी चाहिए. That's very very important. So he keeps it alive, I must say. Full credit goes to him. ओके, सो नो, कोरोना वायरस चल रहा है, पराग भी बिजी रहता है शेड्यूल में और शूटिंग में. सो कितना टफ हो जाता है शूटिंग से जब वो आते हैं, कितना प्रिकॉशन वो लेते हैं और आप भी लेते हो ना जब दोनों शूट करते हैं तो. बहुत ज्यादा. प्लस पराग ऑलवेज वरीज अबाउट मी. सो यस. वो ही ऑलवेज जो कपड़े वो पहन के जाते हैं, ही कैरीज एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ. वो चेंज करके आते हैं घर पे. घर पे आते हैं सबसे पहले शावर लेते हैं वो. देन ही कम्स टू मीट मी.
सेट पे भी ही टेक्स फुल प्रिकॉशन। इनफैक्ट द होल सेट जितने लोग हैं वहाँ पे ऑक्सीमीटर्स हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल्स कॉन्स्टेंटली चेक हुआ होते हैं, उनके टेम्परेचर्स चेक होते हैं, और जो स्टाफ है उनके मास्क हर दो तीन घंटे में वो डिस्पोज करते हैं। सबने पीपीई सूट्स पहने हुए हैं और वो पूरे टाइम अपने मेकअप वैन में ही रहते हैं। मतलब नॉर्मली वो बहुत ही आउटगोइंग है, वो सेट पे ना अगर उनका सीन नहीं लगा है फिर भी वो घूमते रहते हैं, सबसे बातें करते रहते हैं। बट इन दिस टाइम ही सिट्स इन दिस वैनिटी वैन, ही ट्राइज टू कीप अ सोशल डिस्टेंस। एंड आई थिंक सारे ही लोग ये कर रहे हैं और करना भी चाहिए, बिकॉज बीच बीच में किसी ना किसी सेट पे भी कोरोना की केसेस आते हैं, पता चलता है, तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। सो इट्स ही इज बीन वेरी वेरी केयरफुल। और घर पे भी हमारे जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं बहुत स्पेशल वॉश से हाँ। क्लीन होते हैं। हम घर को सैनिटाइज करवाते हैं रेगुलरली। और वैसे ही मुझ में सफाई का इतना कीड़ा है तो घर साफ सफाई तो होती ही रहती है क्या ना। प्लस आई थिंक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, हाथ धोने यस अगेन एंड अगेन। तो आई थिंक ये तो अभी हम हमारे डीएनए में बस चुका है। ये जो 7-8 महीने से ये जो चल रहा है, मतलब मुझे तो आजकल हाथ धोने के सपने भी की आते हैं। आदत हो गई है, इतना मास्क और सैनिटाइजर की आदत हो गई है। बिल्कुल, इट इज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। मतलब जैसे हम वो पर्स में और मोबाइल लेके घर के बाहर पहले निकलते थे, अब नाउ वी हैव टू आल्सो लुक फॉर अ मास्क एंड अ सैनिटाइजर एंड ग्लव्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट क्या करें, इट्स द नीड ऑफ द आवर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। और जब बात किया जाए ना, बिग बॉस भी आ रहा है और आपको लगता है कितना सेफ होगा बिग बॉस शूट करना इस वक्त में? आई थिंक बिग बॉस आप घर के अंदर चले जाते हो तो बिल्कुल सेफ हो जाता है। और मैंने सुना है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको अभी क्वारंटीन किया हुआ है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट आई एम श्योर किया होगा। एंड सबके कोरोना टेस्ट वगैरह तो होते ही है। सो आई थिंक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस में मतलब हर वो चीज वो करेंगे ताकि माहौल सेफ रहे। बट मैं यस। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट सीजन हमारा सीजन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ हो गया था और चार्ट ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स थे उसके। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस बार क्या होगा बिग बॉस में और कितना एक्साइटिंग रहेगा। एंड मुझे मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस बात की, क्या नया होगा। आई बिलीव कुछ नया, ये हर साल कुछ ना कुछ नया हाँ, करते हैं। बिग साइड बॉस का हर का थीम अलग होता है और सेलिब्रिटी लाइनअप्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इनके। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ईयर। लॉकडाउन थीम भी रखा है इस बार में, उसी का ध्यान रखते हुए ऐसा भी कहा जा रहा है कि घर में ही सिनेमा हॉल और मॉल्स होने वाले हैं। आपको जब आपने अगर ये सुना ये ये बिग सब चीज बॉस के बारे करेंगे में? ना तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी क्योंकि हमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी सिनेमा हॉल की और मॉल की। हमारे यहाँ पे चाय पत्ती पे लड़ाई होती थी। उसमें भी लड़ाई हो जाती थी। आई रिमेम्बर पास्ता को लेकर वो अब भी तक झगड़े होते थे, जो रात आई को नो, पास्ता बट क्या खा करें, मतलब इतना लिमिटेड आता था वहां पे खाना पीना वगैरह, मतलब इनफ फॉर एवरीबॉडी। मगर किसी ना किसी तरह खत्म हो जाता था। मतलब बोल नहीं सकते कभी किसी को ज्यादा भूख लग गई हो तो बहुत टेम्पटिंग होता था। और कभी कभी कोई टास्क अगर कोई टीम जीते तो उनको लग्जरी बजट में ये चॉकलेट्स और पास्तास मिलते थे, और जो हारी वाली टीम होती थी वो उनको बहुत बुरा लगता था कि हमें नहीं मिलेगा ये सब। मगर देखिए यही कंटेंट है बिग बॉस का, इसीलिए लोग देखना पसंद करते हैं। ऐसी चीजें होती है बिग बॉस में। बट आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया। इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस and I'm very happy to be a part of that season. जो season was like the एग्जैक्टली। chart breaking season. Yeah. सो शिफाली, आपको क्या लगता है, आपको ये सीजन में फिर से जाना चाहिए ना? इतने सारे फैसिलिटीज दे दिया है इस बार, सिनेमा हॉल हाँ है, यार, अगर इतनी शूटिंग सारी है। फैसिलिटीज मिल रही है, वैसे देखो लॉकडाउन में हम ना कोई सिनेमा हॉल जा सकते हैं ना मॉल जा सकते हैं। तो प्योरली यस। फॉर दीज रीजंस आई डोंट माइंड गोइंग इनटू द बिग बॉस हाउस अगेन फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स। ओके, आप कौन सी कंटेस्टेंट को देखना चाहेंगे बिग बॉस सीजन 14 में? बिकॉज ऐसे बहुत सारे नेम सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन कंटेस्टेंट जा सकता है और देखिए आप पता है, किसी मैंने को? हमेशा से हर साल देखा है इतने नाम बाहर आते हैं और हाँ, टुवर्ड्स द एंड जो लोग घर में जाते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बोलते नेम्स। थे। तो यहाँ पे यस। स्पेकुलेशन करके मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि मैं किसको देखना चाहूंगी। मैं बहुत लोगों को देखना चाहूंगी जिन लोगों के नाम भी अभी बाहर आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप है, बट आई डोंट नो
ओके ये कंफर्म है नहीं है, क्योंकि बिग बॉस हर चीज कितनी सीक्रेटिव रखते हैं, बट आई एम वेरी Yes. श्योर कि जो भी घर में जाएगा तय मतलब बहुत ही अच्छा लाइनअप होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज होगी सबकी, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। मतलब इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और मैं खुद अपने सोर्सेज से डिग करती रहती हूँ कि भाई कौन जा रहा है, कुछ पता चला बताओ यार, मुझे कोई गॉसिप दे दो। ओके, तो आप किसको देखना चाहोगे? एनी मैं ऑफ योर किसको देखना फेवरेट? चाहूंगी? और मैं देखना चाहूंगी, बहुत लोग हैं। जैस्मिन वसीम के नाम आगे आ रहे हैं। आई यस। फाइंड हर वेरी स्वीट गर्ल। वो घर में भी आई थी जब हम घर के हाँ। अंदर थे। तो she will bring a lot of glamour to the show, and she यस। has a very unique personality also, so I would like to see her. और नाम आ रहे हैं निया शर्मा के। I think she also has a very strong personality. So it's good to see people with strong personalities in Big Boss. And I'm all pro women, so I'm really liking all the names that are coming. They're very very interesting names. और बताइए क्या नाम आ? They are saying Shagun Pandey also, Okay. Izaz Khan, Mm-hmm. और ये सभी नाम सामने आ रहे हैं अभी। अब देखते हैं, मतलब who all actually make it, because it's very till the हमने तो last देखा है। minute you don't know who is really going, who is not going. बीच में फिर खबरें आ रही थी कि maybe Nia is not doing it, then somebody is यस। backing out, somebody is stepping back in, so you don't really know. But one thing is for sure कि जितने भी लोग जाएंगे सारे पर्सनालिटीज बहुत ही यूनिक होंगी, एक दूसरे से यस। बहुत ही अलग होंगे, और देखने में बड़ा मजा आएगा। और ये बहुत मजेदार